Hello kids, we are doing chapter number 1, Large Numbers Around Us of class 7th NCERT Ganit Prakash. In continuation to our earlier video, today we are going to start with topic number 1.6, Did You Ever Wonder? Etsu is amused by all these interesting facts about large numbers. While thinking about these, he came up with an unusual question. Could the entire population of Mumbai fit into 1 lakh buses? What do you think? How can we find out? Let us assume a bus can accommodate 50 people. Then 1 lakh buses can accommodate 1 lakh into 50, that is equals to 50 lakh people. तो यहाँ पे he is Etsu is amused by such large numbers और फिर उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि if assuming that there are 1 lakh buses in Mumbai and every bus could accommodate 50 people, can those 1 lakh buses accommodate the entire population of Mumbai? तो अभी 1 बस में कितने लोग आ रहे हैं? 50 people, right? And we have 1 lakh buses. So there will be 1 lakh into 50, which is going to be 50 lakh people, right? Now we want to know that the population of Mumbai, can this population fit into 1 lakh buses? So the population of Mumbai is more than 1 crore 24 lakhs. In the earlier exercises we have seen, जहाँ पे table दिया हुआ था population का. So there the population of Mumbai was more than 1 crore 24 lakhs, which is a very large amount as compared to 50 lakh people, right? So we can say that the population of Mumbai cannot fit in these 1 lakh buses. So Mumbai's population cannot fit in 1 lakh buses. The next question is, the RMS Titanic ship carried about 2,500 passengers. Can the population of Mumbai fit into 5,000 such ships? तो अब एक RMS Titanic शिप है जिसकी कैपेसिटी क्या है कि इट कैन कैरी 2,500 पैसेंजर्स और 2,500 पैसेंजर्स. तो क्या उस शिप्स में ऐसे 5,000 सच शिप्स में पॉपुलेशन ऑफ मुंबई फिट इन हो जाएगी कि नहीं होगी? सो पैसेंजर्स इन वन शिप इज 2,500. Passengers in 5,000 ships would be 2,500 into 5,000, which is 1 crore 25 lakh. और मुंबई की population as from the previous exercise is approximately or somewhat more than 1 crore 24 lakhs. तो अब आप देखो कि कंपेयर करके तो जो शिप में पैसेंजर्स आ सकते हैं they can be 1 crore 25 lakhs and population is less than this number. So yes, the population of Mumbai can fit in 5,000 such ships. Now, inspired by the strange questions, Roxy wondered, if I could travel 100 kilometers every day, could I reach the moon in 10 years? The distance between the earth and the moon is 3,84,400 kilometers. How far would she have traveled in a year? How far would she have traveled in 10 years? Is it not easier to perform these calculations in stages? You can use this method for all large calculations. तो अब यहाँ पे अपने भाई से इंस्पायर होके रॉक्सी के मन में भी क्वेश्चंस आने लगे. सो शी इज आस्किंग अ क्वेश्चन कि इफ आई कुड ट्रैवल 100 किलोमीटर्स एवरी डे वुड इट बी पॉसिबल फॉर मी टू रीच द मून इन 10 years? तो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू परफॉर्म द कैलकुलेशंस इन स्टेजेस टू मेक आवर कैलकुलेशंस इजियर. तो सबसे पहले तो डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 day. तो 1 day में कितने किलोमीटर्स हम ट्रैवल कर रहे हैं? 100 kilometers every day. So here we will write distance travel in 1 day is 100 kilometers. अब 1 year में कितने days होते हैं? हम लीप ईयर्स को अगर इग्नोर कर दें तो assuming 365 days in every year, so 1 year में you will be able to travel 36,500 kilometers. और 10 years में कितना होगा? This distance has to be multiplied by 10 to get the distance travel in 10 years. So it would be 3,65,000 kilometers. और अभी हमें क्या दिया गया है? द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज 3,84,400 किलोमीटर्स. तो अगर आप कंपेयर करोगे सो 3,65,000 which we can travel in 10 years is less as compared to the distance between the moon and the earth, right? So Roxy cannot reach moon in 10 years. Next is, find out if you can reach the sun in a lifetime. If you travel 1,000 kilometers every day, you had written down the distances between the earth and sun in a previous exercise.
ठीक है, तो आप ये पता लगाना है क्या हम सन तक पहुंच सकते हैं. If we travel 1000 kilometers every day, is it possible to reach to the sun in a lifetime? जब तक हम अलाइव हैं, क्या उतने ड्यूरेशन में हम कभी भी सन के पास पहुंच सकते हैं? सो लेट अस सी. तो प्रीवियस एक्सरसाइज में डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ गिवन था कितना? 14 करोड़ 70 lakhs kilometers, right? अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन डे इज 1000 किलोमीटर. So distance travel in 1 year, assuming again that we are not considering the leap years over here. So assuming 365 days per year, the distance traveled in 1 year would be 3,65,000 kilometers. Now you have to find ki how much time will it take for us to travel the distance between the earth and the sun, which is 14 crore 70 lakhs. तो यहाँ पे हम 14 crore 70 lakhs को divide कर देंगे the distance traveled in 1 year, which is 3,65,000. और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे आपको अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 402.73 ईयर्स, मतलब 402.73 ईयर्स. The time required to reach the sun is approximately 403 years, and humans does not have such a big lifespan. ज्यादा से ज्यादा हम 100 साल जीते हैं, 125 years जीते हैं, ज्यादा और भी मान लेते हैं तो 150 years तक, right? So it is not possible. We cannot reach the sun in a lifetime. Next is make necessary reasonable assumptions and answer the questions below. If a single sheet of paper weighs 5 grams, could you lift 1 lakh sheets of paper together at the same time? Then if 250 babies are born every minute across the world, will a million babies be born in a day? Can you count 1 million coins in a day? Assume you can count 1 coin every second. तो ये 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें हमें अपने हिसाब से नेसेसरी assumptions लेने हैं. ठीक है, so let us do the first one. If a single sheet of paper is weighing 5 grams, could you lift 1 lakh sheets of paper together at the same time? तो 1 sheet of paper का weight कितना दिया है? 5 grams. Now 1 lakh sheet of papers का weight कितना हो जाएगा? We'll multiply 5 with 1 lakh, which would be 5 lakh grams. To get a better idea of the weight, हम इस ग्राम्स के वेट को केजीज में कन्वर्ट कर देते हैं. सो लेट अस डिवाइड इट बाय 1000. जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो वेट कितना आ गया? 500 kgs. सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ टिपिकल अडल्ट टू कैरी 500 kgs of weight. Okay, I am not talking about the weightlifters. They can do that. So you could not lift 1 lakh sheets of paper together at same time. Now what is given in the next question? If 250 babies are born every minute across the world, will a million babies be born in a day? तो babies every minute कितने born हो रहे हैं? 250, right? तो 1 घंटे में कितने minutes होते हैं? 60 minutes. तो to get the number of babies in 1 hour, we will multiply this 250 with 60. तो आपको आ जाएगा 15,000 babies are born in 1 hour. Now you have 24 hours in a day. So number of babies that are born in a day would be 15,000 times of 24, which is 3,60,000. अब अगर आप कंपेयर करोगे 3,60,000 को 1 million से, तो 1 million would be 10 lakhs, right? तो 3,60,000 is very less as compared than a million. So a million baby will not be born in a day. The C part. Can you count 1 million coins in a day? Assume you can count 1 coin every day. So coins counted in a second is 1 coin. हम every second कितने coins count कर रहे हैं? 1 coin. So every minute has 60 seconds. So every minute we will be able to count 60 coins, right? Now every hour also have 60 minutes. So every hour you are going to be counting 60 into 60, which is 3,600 coins. And now you have 24 hours in a day. So every day you will be able to count 86,400 coins. Again, we have to compare, is it greater than, less than or equals to 1 million? Since 86,400 coins can be counted in a day at the mentioned rate, and the rate is 1 coin per second, which is less than 1 million. So 86,400 is again very less as compared to 1 million, which is equivalent to 10 lakhs. So you cannot count 1 million coins in a day. Now they ask you, think and create more such fun questions and share them with your class.
So one question as an example I have given, like आप बोल सकते हो can you write 1 million words in a day? Assume that you can write 10 words every minute. तो अगर if I am able to write 10 words every minute, would I be able to write 1 million words in a day? तो ऐसे questions आप अपने friend से पूछ सकते हो, आप और भी बहुत सारे ऐसे questions खुद से फ्रेम कर सकते हो. Now these figure it out questions are not related to a specific topic. अभी तक हमने जितने भी topics पढ़े हैं from 1.1 to 1.6 सबसे related हैं ये सारे questions. Let's now begin with figure it out question number 1. Using all digits from 0 to 9 exactly once, the first digit cannot be 0. To create a 10-digit number, write the largest multiple of 5 and then you have to write the smallest even number. तो क्या कह रहे हैं कि हमें 0 से लेके 9 तक सारे डिजिट्स यूज करने हैं और एक बिगेस्ट नंबर बनाना है विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5 और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है विच इज अ इवन नंबर. तो आप लोगों को पता है मल्टीपल्स ऑफ 5 में लास्ट में 0 आता है या 5 आता है. सो एनी नंबर एंडिंग विथ 0 and 5 विल बी द मल्टीपल ऑफ 5. सो लेट अस सी. सो इफ वी अरेंज द डिजिट्स, लार्जेस्ट नंबर चाहिए, सो वी विल अरेंज द डिजिट्स फ्रॉम 9 to 0. डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंजमेंट करेंगे. जब डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया तो क्या नंबर बना? 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. राइट. अब सिंस दिस नंबर इज इटसेल्फ एंडिंग विथ 0 और कोई भी नंबर इफ इट एंड्स विथ 0 इज मल्टीपल ऑफ 5, सो दिस विल बी द लार्जेस्ट नंबर विच इज गोइंग टू बी द मल्टीपल ऑफ 5 एज वेल. नाउ सेकेंड पार्ट देखते हैं. So we have to find the smallest even number which can be formed with these digits. Smallest number बनाना है तो हम क्या करेंगे? Increasing order में arrangement करेंगे. लेकिन we cannot keep 0 at the first position because अगर हम 0 first position पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा वो number instead of 10 digits it will become a 9-digit number. So the only thing we have to do is कि हम 0 और 1 को swap कर दें. तो 1 को पहले लिख देते हैं फिर 0 and then we'll continue writing our number. Right? So let us arrange the digits in the increasing order such that 0 should not be the first digit as we require a 10-digit number. So swapping the places of 0 and 1, 0 और 1 को swap कर दिया. नंबर क्या मिल गया हमें? 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9. Now again the number should be even. So we will have to swap the last two digits. तो last two digits हमने swap करके नंबर क्या मिल गया? यहाँ पे last two digits swap कर दी ना. तो नंबर मिल गया 1 0 2 3 4 5 6 7 9 8. Therefore the smallest even number is 1 0 2 3 4 5 6 7 9 8. तो पहला क्वेश्चन हमारा फिगर इट आउट का हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? द नंबर 1030285 in words is 10,30,285. which has 43 letters. Give a 7-digit number. Name which has the maximum number of letters. तो जब आपने ये नंबर है ना, इसको जब आपने वर्ड्स में लिखा और इसके सारे लेटर्स को काउंट करोगे तो इट विल कम एज 43 लेटर्स. अब हमें एक ऐसा नंबर बनाना है, कितने डिजिट्स का? 7 डिजिट का नंबर बनाना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स हम लिखें. तो देखते हैं हम. अगर आप नंबर्स नेम देखोगे ना 1 to 9 तो आपको पता चले. जैसे 1 की स्पेलिंग क्या होती है? ONE 1. तो 3 लेटर्स आ रहे हैं. तो ऐसे ही व्हेन वी विल चेक फॉर ऑल दी नंबर्स वी विल सी कि जो 3 है उसमें 5 लेटर्स आते हैं. 7 के नंबर नेम में भी 5 लेटर्स आते हैं और 8 के नंबर नेम में भी 5 लेटर्स आते हैं. अब हम क्या करते हैं? लेट्स मेक दीज नंबर्स. तो पहला हमने नंबर बनाया 33,33,333 और आपने जब उसका नंबर नेम लिखा तो यहाँ 57 लेटर्स टोटल आए. उसके बाद 77,77,707 राइट. और इसके नंबर नेम में 60 लेटर्स आ गए. अब देखते हैं. सो 88,88,888 एंड हटा देंगे. ठीक है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. तो इसमें भी 57 लेटर्स हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि मैम जब 3 में 7 में और 8 में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है कि अगर आप नंबर नेम्स देखोगे तो 33 लाख 30 ये टर्म भी तो यूज हो रहा है 3 की जगह ना. 30 30 एंड 30 एंड दिस टर्म इज बीइंग यूज्ड 3 टाइम्स है ना.
और 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने डिजिट्स हैं? 6 डिजिट्स हैं। अब 70 वाला टर्म देखो, तो 70 में 7 लेटर्स हैं और ये भी 3 बार यूज हो रहा है, और 80 में भी 6 लेटर्स हैं, ये भी 3 बार यूज हो रहा है। तो ऑल टुगेदर बाकी के दोनों में 3 लेटर्स यहां से कम हो गए। So the 7-digit number name with maximum letters is 77,77,777. Now let us move to our third question. So write a 9-digit number where exchanging any 2 digits result in a bigger number. How many such numbers exist? अब आपको एक 9 डिजिट का नंबर लिखना है जिसमें आप कोई भी 2 डिजिट्स रिप्लेस करोगे ना, तो पहले वाले नंबर से न्यू नंबर शुड बी बिगर. So to ensure that exchanging any 2 digits results in a bigger number, the digits must increase from left to right. तो अभी देखते हैं, हम अगर नंबर्स को अरेंज कर दें ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर बन गया जो हमें 9 नंबर से 9 डिजिट का बना सकते हैं. अब कोई भी 2 नंबर्स को रिप्लेस करने की कोशिश करो. Let's replace these two. So 2 1 3 4 5 6 7 8 9. क्या पता चल रहा है? Isn't it? This number is bigger than the previous number. So when you will keep swiping any 2 digits now, you will always observe that the new number formed will always be bigger than the previous number. So there is only one such number that satisfies this given condition, and that number is 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Now for question number 4, you have to strike out 10 digits from the number. Number is given. Number is a repetition of 1 2 3 4 5. How many times? एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार. So that the remaining number is as large as possible. अब हमें इस नंबर में से ऐसे 10 डिजिट्स हटाने हैं कि जो नंबर बाकी रिमेनिंग 10 डिजिट से बन रहा है, दैट शुड बी द लार्जेस्ट नंबर. तो गिवन नंबर हमारा ये है. वी विल रिमूव 10 स्मॉलेस्ट डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट. द नंबर वी गेट इज, अब हम क्या क्या स्ट्राइक कर दे रहे हैं? 1 स्ट्राइक कर दिया, 2 स्ट्राइक कर दिया, 3 और 4. तो 5 बिगेस्ट नंबर को हम रख रहे हैं. फिर 1 2 3 4 इसको भी हम रख रहे हैं. तो कितने डिजिट्स आप स्ट्राइक कर चुके हो अभी तक? 8. 2 और हटानी है, तो फिर से हमने क्या हटा दिया? 1 और 2. सो 1 2 3 4 1 2 3 4 8 एंड 1 2 10 डिजिट्स हटा दी. सो द रिमेनिंग नंबर वुड बी 5, देन अगेन 5, then you will have 3 4 and then the remaining numbers. So we will remove the 10 smallest digits from the left. The number we will get is 5 5 3 4 5 1 2 3 4 5. So this is the largest number that we receive after we strike the 10 digits. Let us now see question number 5. The words 0 and 1 share letters E and O. The words 1 and 2 share a letter O, and the words 2 and 3 also share a letter T. How far do you have to count to find 2 consecutive numbers which do not share an English letter in common? तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है? जैसे हमारा एक नंबर नेम है 1 एंड 2. 1 एंड 2 में क्या कॉमन है? O कॉमन है. ऐसे ही जब आप 2 और 3 लिखोगे तो T कॉमन आ गया. कुछ ना कुछ तो हमें कॉमन मिल ही रहा है. फिर लेट अस राइट 3 एंड 4, तो इसमें क्या? R कॉमन मिल गया. फिर अगर हम 5 और 6 लिखेंगे, 4 और 5 लिखेंगे तो आपको F कॉमन मिल जाएगा. फिर 5 और 6 लिखोगे तो I कॉमन मिल जाएगा. से आप कब तक काउंटिंग कर सकते हो कि आपको कोई भी कॉन्जिक्यूटिव 2 नंबर्स में कोई भी कॉमन लेटर ना मिले. तो जब आप ये लिखते रहोगे ना, यू विल ऑब्जर्व कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पेयर ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जिसमें आपको कोई कॉमन नंबर नहीं मिले. सो व्हेन यू कीप एक्सटेंडिंग दीज नंबर्स ना, 5 6 6 7 7 8 ऐसे लिखते चले जाएंगे, आपको दिखेगा कि ऐसे कोई भी 2 नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कोई भी 2 ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं जिनके बीच में कोई भी लेटर कॉमन ना हो. So the problem involves finding 2 consecutive numbers such that their number names do not share common letters. तो मैंने एग्जाम्पल दे दिया है. 0 और 1 में आपका E शेयर हो रहा है, फिर 1 और 2 में आपका O शेयर हो रहा है, 2 और 3 में T,
एंड सो ऑन। और आप 19, 20, देखो सारे नंबर्स बने तो इन्हीं नंबर से है ना। अगर 19 में हम चेक करेंगे तो 19 में 9 का नंबर, 9 का नेम तो है ही ना, हार्डली थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं। Therefore, there are no consecutive numbers that do not share a letter in common. Next question is question number 6. Suppose you write down all the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and you keep writing down these numbers. The 10th digit you write is 1 and the 11th digit is 0 as part of the number 10. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जब हम नंबर्स लिखते हैं, जैसे 1 लिखा, 2 लिखा, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, राइट। तो अगर हम डिजिट काउंट करेंगे तो ये फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड है, ये थर्ड डिजिट है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, सेवेंथ है, एट्थ है, नाइन्थ है, ये 10th है। पर इसके बाद जो 0 अपेयर हो रहा है विच इज अ पार्ट ऑफ नंबर 10 इज एट पोजीशन, इट इज एट 11th डिजिट, राइट। फिर जो ये 1 और 1 है विच आर द पार्ट ऑफ द नंबर 11, तो ये आपका 12th डिजिट है और ये आपका 13th डिजिट है। नेक्स्ट ये आपका 14th डिजिट है और ये आपका 15th डिजिट है, राइट। सो पोजीशंस के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम डिजिट्स की बात कर रहे हैं। तो जब तक हमारे सिंगल डिजिट नंबर्स थे तो हमारी पोजीशंस और डिजिट सेम थी, बट जैसे ही हमारे डबल डिजिट नंबर्स आए पोजीशंस और डिजिट्स डिफरेंट हो गए। Based on this concept, they are asking you few questions. What would the 1000 digit be? At which number would it occur? अब पहला क्वेश्चन क्या है कि अगर आप ऐसे ही नंबर्स को लिखते गए तो 1000th डिजिट कौन सी होगी। They are not asking you 1000 नंबर कौन सा होगा, क्योंकि 1000 नंबर तो 1000 ही होगा, बट they are asking कि 1000th प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा, राइट। तो चलो कैसे करना है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप जब नंबर्स 1 to 9 लिख रहे हो तो आप कितने डिजिट के नंबर्स यूज कर रहे हो, ईच ऑफ दीज आर 1 digit numbers, so overall you are using 9 digits over here when you write 1 to 9. जब आप 10 से 99 के बीच के नंबर्स लिख रहे हो तो ये 2 digit नंबर्स हैं और टोटल नंबर्स कितने हैं 10 से 99 तक, 90 है, क्योंकि आप 10 को काउंट कर रहे हो और 100 को नहीं कर रहे हो, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 10। अगर आप ऐसे लिख तब भी कितने नंबर्स होते, 90 नंबर्स ही होते, पर यहाँ पे हम यहाँ पे -1 कर रहे हैं और यहाँ पे भी -1 कर रहे हैं, इसीलिए अभी भी हमारे 90 नंबर्स ही हैं, राइट। नाउ ईच ऑफ दीज 90 नंबर्स आर गोइंग टू बी कंट्रीब्यूटिंग 2 digits ईच, तो टोटल डिजिट्स कितने हो गए 180 डिजिट्स। ऐसे ही व्हेन यू मूव फर्दर, जब आप 100 से लेके 999 तक के नंबर्स लिखोगे तो ईच ऑफ दीज आर 3 digit नंबर्स, तो इनको लिखने पे आपको कितने डिजिट्स मिलेंगे 2700 डिजिट्स मिलेंगे। पर ये तो हमारी रेंज के बियॉन्ड जा रहे हैं, क्योंकि हमें तो निकालना है 1000 डिजिट बी, राइट। सो दिस इज फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस कि कैसे आपके नंबर्स पढ़ते हैं। ऐसे ही जब आप आगे बढ़ोगे सो यू विल मल्टीप्लाई 4 digit नंबर्स विथ 4, है ना। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा कि हाउ मेनी डिजिट्स डज ईच टाइप ऑफ नंबर्स कॉन्ट्रीब्यूट, ठीक है। तो अभी तक जब आप फ्रॉम 1 to 99 नंबर्स निकाल रहे हो तो आपके डिजिट्स कितने हो गए टोटल 9 सिंगल डिजिट्स एंड डबल डिजिट के 180 डिजिट्स, तो टोटल 189 डिजिट्स ऑलरेडी आपके पास यहाँ हो चुके हैं। पर हमें निकालना है 1000 डिजिट, है ना, और 3 digit नंबर्स जो है वो 2700 डिजिट्स को कंट्रीब्यूट करेंगे, तो जो हमारा नंबर है ना वो हमें कहीं इसी रेंज में मिलने वाला है, राइट। सो द 1000 digit विल लाई इन दिस 3 digit नंबर रेंज। कौन सी रेंज में, 100 से लेके 999 के बीच में ही ऐसा नंबर हमें मिलेगा। तो 189 डिजिट्स ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं, अब रिमेनिंग कितना है, तो रिमेनिंग डिजिट्स हमें जो यूज करने हैं वो कितने हैं 1000 minus 189, so you get 811. Now number of 3 digit numbers to reach 811 digits. अब हमें 811th डिजिट तक जाना है और जो भी हम नंबर यूज कर रहे हैं वो 3 digit के नंबर हैं, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो आपको क्या मिलेगा 3 times of 2 is 6, तो 2 आ गया, और फिर आप 1 नीचे लेके आओगे, 3 times of 7 is 21, ठीक है, यहाँ 0 लेके आओगे 1, तो बेसिकली 270 फुल नंबर्स आप यूज कर चुके हो उस प्लेस पे पोजीशन पे पहुंचने के लिए।
और एक नंबर और आपने दूसरे डिजिट का लिया, है ना। तो अभी हमें क्या पता चल गया कि हमें 270 फुल नंबर्स काउंट करने स्टार्टिंग फ्रॉम 100, और उसके बाद नेक्स्ट नंबर लेना है, उसकी फर्स्ट डिजिट को हमें ध्यान में रखना है। So now we have to count the 270th number starting from 100. तो जब आप गए 100 से, तो 100 से 270th नंबर कौन सा होगा? आप 100 प्लस 270 करोगे -1 इसलिए क्योंकि हम 100 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम 101 से स्टार्ट करते तो डायरेक्टली हमें मिल जाता, राइट। तो ये जो 369 नंबर है, इसके जो नंबर्स होंगे वो कौन कौन से पोजीशन पे होगा? ये 997th पे होगा डिजिट, ये 998th डिजिट होगा, और ये 999th डिजिट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा एक रिमाइंडर बच रहा था ना 1, राइट। तो अब इसका जो नेक्स्ट नंबर है, उसका जो फर्स्ट डिजिट होगा, दिस नंबर 3 विल बी एट दी 1000th डिजिट। नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं व्हाट नंबर वुड कंटेन द मिलियंथ डिजिट। अभी तो 1000 डिजिट ही था, मिलियंथ डिजिट कैसे लिखते हैं? मिलियन ही लिख लो पहले। मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, तो 10th लाख डिजिट के बारे में पूछ रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा जैसे कि हमने देखा कि 1 to 9 में हमने 9 डिजिट्स यूज किए, फिर 10 to 99 में 180 डिजिट्स यूज किए, फिर 100 से 999 में 2700 डिजिट्स हमने यूज कर लिए थे। ये तो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखा। लेकिन अभी बात 1000 डिजिट की नहीं है, बात कहाँ पहुंच रही है? 10th लाख डिजिट की या 1 मिलियंथ डिजिट की। सो वी हैव टू कीप ऑन डूइंग दी नंबर्स। अभी 1000 से 999 में कितने नंबर्स आएंगे? पहले तो टोटल नंबर्स 9000 होते हैं, एंड ईच ऑफ दीज इज 4 डिजिट नंबर्स, सो टोटल 36,000 डिजिट्स विल बी यूज्ड ओवर हियर। फिर जब आप और आगे बढ़े 10,000 से 99,999 तक, तब 90,000 नंबर्स हैं, एंड ईच ऑफ दीज आर ऑफ 5 डिजिट्स, सो यू आर गोइंग टू यूज 4,50,000 डिजिट्स। नेक्स्ट, अब आप गए 1 लाख से 9,99,999। तो जब आप ये नंबर्स काउंट करेंगे तो देयर विल बी टोटल 9 लाख नंबर्स। ईच ऑफ दीज विल बी 6 डिजिट नंबर्स कंट्रीब्यूटिंग टू टोटल 54 लाख डिजिट्स। बट अब हमें 54 लाख डिजिट्स तक तो जाना नहीं है, हमें कहाँ तक जाना है? सिर्फ 10th लाख डिजिट में। तो हमारा काम इधर ही कहीं बन जाएगा। दैट मीन्स जिस नंबर की हमें सर्च है, दैट वुड बी having one of its digits at the millionth digit would be between these numbers, right? So now for millionth digit up to 5 digit numbers, यहाँ तक 5 digit numbers तक के आप सारे digits count कर लीजिए। 9 ये वाला 1 digit, then 2 digits 180, then for 3 digits 2700, for 4 digits 36,000, for 5 digits 4,50,000। तो टोटल कितने digits अभी तक हम यूज कर चुके हैं? 4,88,889, राइट। और अब रिमेनिंग डिजिट्स जो हमें यूज करनी है, क्योंकि हमें 10 लाख डिजिट्स पे पहुंचना है, राइट। तो 10 लाख में से हम ये 4,88,889 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिला? 5,11,111। दिस 54 लाख डिजिट्स, हमें कौन सी डिजिट चाहिए? जो कि 5,11,111 पोजिशन पे हो, राइट। तो अब हमें क्या करना है? द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स रिक्वायर्ड, वी विल नाउ डिवाइड दिस नंबर बाय 6। जब आपने इसको 6 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 6 टाइम्स ऑफ 8 इज 48। मैं इसे इरेज कर दूं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। तो आप डिवाइड करोगे तो 6 टाइम्स ऑफ 8 इज 48, राइट। अब सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आया, फिर 1 आ गया, फिर 6 टाइम्स ऑफ 5 इज 30, सब्ट्रैक्ट किया 1 आ गया, ऊपर से 1 ले लेते हैं। 6 टाइम्स ऑफ 1 इज 6, सब्ट्रैक्ट किया 5 आ गया, ऊपर से 1 ले लेते हैं। 6 टाइम्स ऑफ 8 इज 48 अगेन, फिर 3 आ गया। 6 टाइम्स ऑफ 5 इज 30 अगेन। तो फाइनली हमारा रिमाइंडर कितना बचा? जैसे पहले किया था कि हम वहां तक पहुंचने के लिए कैसे गए थे? वी आर गोइंग टू ऐड 85,185 टू द वेरी फर्स्ट 6 digit number which is 1 lakh, and we will subtract 1 from it. Why? Because we are using 1 lakh as our first number. ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 1,85,184। बट ये कौन सा नंबर है? दिस इज नॉट द रिक्वायर्ड नंबर। इसके बाद वाला जो नंबर है विच इज
1,85,185. दिस इज आवर रिक्वायर्ड नंबर, बिकॉज इसी नंबर में जो फर्स्ट नंबर है, जो फर्स्ट डिजिट है, दैट विल अपियर ऑन 1 millionth प्लेस. 1 millionth डिजिट पे ये नंबर अपियर होने वाला है. सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 1,85,185 and the digit that is going to appear on the 1 millionth place is 1. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा. और जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज लुक एट दीज क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन अनलेस यू अंडरस्टैंड. इवन आप खुद से ट्राई करिए. मैं ये नहीं कह रही हूँ 1 million डिजिट तक लिख के देखिए, लेकिन आप 1 से लेके 100 तक में देखो कितने डिजिट्स यूज हो रहे हैं. स्लोली एंड स्टेडीली यू विल अंडरस्टैंड द लॉजिक. Now the last part of this question says, when would you have written the digit 5 for the 5,000th time? Again a complicated one. Okay. तो आप पहले तो सिंपल सा ये देखो, जब हम 1 से लेके 9 तक नंबर्स लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है. तो 5 कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है. जब हम सिंगल डिजिट नंबर्स लिख रहे हैं, सो व्हेन वी आर राइटिंग सिंगल डिजिट नंबर्स 1 to 9, ओनली 5 is coming once, right? जब आप 2 डिजिट नंबर्स लिखते हो तो आप सोचो कब कब 5 आएगा. जब 2 डिजिट नंबर लिखते हैं तो 15 में आएगा, 25 में आएगा, 35 में आएगा, 45 में आएगा, एंड सो ऑन अप 95 तक आएगा. तो जब आप ये काउंट करोगे तो कितनी बार 5 अकर होगा? 9 बार 5 अकर होगा, ठीक है. लेकिन आप एक चीज और भी याद रखो, जो 50 वाली सीरीज है, जैसे 50 से लेके 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 एंड 59. तो यहाँ पे भी तो हमारा 5 आ रहा है. यहाँ पे भी तो हमारा 5 आ रहा है. कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स यहाँ पे आ रहा है. तो टोटल जब हम 10 से लेके 99 तक नंबर्स लिखते हैं तो 9 बार हमारा 5 आता है 1s प्लेस पे, है ना. और 10 टाइम्स हमारा 5 आ रहा है 10s प्लेस पे, राइट. 5 कितनी बार आ रहा है व्हेन वी आर राइटिंग द नंबर्स फ्रॉम 10 to 99? 19 टाइम्स, ठीक है. और अभी तक जब सिंगल डिजिट काउंट्स कर रहे थे तो एक बार यहाँ आया था, और जब हम डबल डिजिट्स काउंट कर रहे हैं तो कितनी बार आया? 19 टाइम्स. तो टोटल अभी तक 5 कितनी बार अकर हो चुका है? सो टोटल अकरेंसेस सो फार वी विल कैलकुलेट फॉर दिस ऑल्सो, फॉर द सिंगल डिजिट्स विच वॉज 1, एंड फॉर द डबल डिजिट्स इट वॉज कमिंग 19 टाइम्स. तो टोटल आप ये कह सकते हो कि 1 से 99 जब आप लिख रहे हो नंबर्स, 5 इज अकरिंग 20 टाइम्स, ठीक है. अब हम जब 3 डिजिट नंबर्स की बात कर रहे हैं तो यूनिट प्लेस पे जो 5 है वो कितनी बार आएगा? अभी आपने ऊपर देखा था, तो जब हम 1 से लेके 99 तक गए थे तो हमारा यूनिट प्लेस पे कितनी बार आ रहा था नंबर? 10 टाइम्स आ रहा था. तो वही लिख रहे हैं, 1 से लेके 99 टाइम्स जब हम जाएंगे तो यूनिट प्लेस पे जो नंबर 5 है दैट इज कमिंग फॉर 10 टाइम्स. बट यहाँ पे हम 100 से लेके 999, मतलब हम कितने नंबर से डील कर रहे हैं? 900 नंबर्स से. तो जब एवरी 100 numbers में the occurrences are 10 unit place पे, तो 900 numbers में there would be 90 occurrences of 5, right? Similarly जब हमने 10th place पे ऊपर देखा था तो 10th place पे कितनी बार अकर हो रहा था? 10 times अकर हो रहा था for the numbers between 10 to 99. पर अब हम 100 से 999 तक डील करें, that means we are now again dealing with 900 numbers. तो 900 numbers में कितनी बार आएगा? 90 occurrences. और जब हम 100 प्लेस पे जाएंगे तो आपको पता है ना कि जो नंबर्स होते हैं 500 से लेके 599, उसमें भी तो 5 आ रहा है, और ये टोटल नंबर्स कितने होते हैं? 100 नंबर्स होते हैं, राइट. तो इस पूरी रेंज में जब हम 100 से लेके 999 की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कितनी बार 5 आ रहा है? बार आ रहा है 90 टाइम्स आ रहा है यूनिट्स प्लेस पे, 90 टाइम्स आ रहा है 10th प्लेस पे, और 100 टाइम्स आ रहा है 100 प्लेस पे. दैट मीन्स अभी जब हमने नंबर्स फ्रॉम 1 to 999 लिख दिए तो टोटल 280 टाइम्स हमारा 5 अकर हो चुका है. अब जब हम 4 डिजिट नंबर्स पे जाएंगे तो हम कितने नंबर्स की बात कर रहे हैं?
1000 से 9999। टोटल कितने नंबर्स के साथ अब हम डील कर रहे हैं? 9000 नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है। और यूनिट्स प्लेस पे कितनी बार हमने पढ़ा था कि हर 100 नंबर में 10 टाइम्स आ रहा है, राइट। तो अब कितनी 9000 नंबर्स में कितनी बार आएगा? 10 into 9, सो 900 occurrences। सिमिलरली टेंस प्लेस पे जब हमने पढ़ा था तब भी यही देखा था हमने कि, तो अगेन 900 occurrences टोटल। अब similarly for 100 places it will again come for 900 times, and then we will count for thousands place। तो मतलब जब आप नंबर्स लिखोगे 5000 से लेके 5999 तक, तो ये टोटल नंबर्स कितने हो गए? 1000 नंबर्स, तो 1000 occurrences यहाँ हो गई। तो अभी तक कितनी बार 5 ऑलरेडी अकर हो चुका है? 900 यूनिट्स यहाँ पे, फिर 900 यूनिट्स 10th पोजिशन में, फिर 900 यूनिट्स 100th पोजिशन पे, फिर 1000 यूनिट्स 1000th पोजिशन पे। तो 3700 तो हमें सिर्फ 4 डिजिट नंबर्स में ही मिल गया कि 3700 टाइम्स दिस 5 इज अपियरिंग इन 4 डिजिट नंबर्स। और उस 4000 occurrences जिसमें से 300 occurrences कौन से वाले हैं? फ्रॉम द नंबर्स 1 to 999। और जो बाकी के 3700 occurrences आए हैं वो कहाँ से आए हैं? 1000 से लेके 9999 के, ठीक है। लेकिन अभी भी हम 5000th पोजीशन पे नहीं पहुंचे हैं। सो टू रीच टू द 5000 पोजीशन जो हमारा नंबर है, नाउ दैट शुड बी इन द रेंज ऑफ 10,000 से लेके आगे जब हम चलेंगे अप टू 99,999, तो इसी के बीच में वो वाला नंबर हमारा एग्जिस्ट करेगा जिसमें 5 विल कम फॉर दी 5000th टाइम, राइट। तो अभी हमें 1000 नंबर और 1000 काउंट्स और चाहिए हैं फॉर द नंबर 5। नाउ अमंग 10,000 टू 10,999 अगर आप ब्रेक कर रहे हो उसको, तो 5 विल अगेन अपियर इन 100 नंबर्स, जैसे कि हम ऊपर वाले। नाउ द डिजिट 5 अपियर्स इन 100 नंबर्स। कौन से पोजीशन पे? जब मैं टेंस वाले पोजीशन की बात करूंगी तो 100 टाइम्स फिर से अपियर करेगा। फिर डिजिट 5 अपियर्स इन 100 नंबर्स जब हम कौन से पोजीशन की बात करेंगे? 100th पोजीशन पे। सिमिलरली द डिजिट 5 अपियर्स इन 300 नंबर्स। 300 नंबर्स कहाँ से कहाँ तक? जब हम 11,000 से 11,999 गए तो फिर से 300 बार अकर होगा। ये आपके 300 हो गए ना यहाँ से यहाँ तक, देखिए। तो एवरी 1000 नंबर्स में इट इज कमिंग 300 टाइम्स नाउ, राइट। 10,000 से 10,999 में 3 बार आया। फिर हम गए 10,000, उसके बाद नेक्स्ट हम 11,000 से 11,999 के बीच में गए, तब वापस से 300 बार आएगा। देन वी विल रीच फ्रॉम 12,000 टू 12,999, राइट। तो इन 1000 नंबर्स में भी डिजिट 5 विल कम 300 टाइम्स, राइट। 100 सो फार कितने occurrences हो चुके हैं? 4000 तो हमारे पास पहले ही आ गए थे, और ये 300 और वापस से 300, दे आर नाउ कमिंग टू 4,900। So the digit 5 would come for the 100th time in between 13,000 to 13,499, इसी रेंज में आना चाहिए, राइट। क्योंकि इसके बाद कौन सा नंबर शुरू हो जाएगा? 13,500 से लेके 13,599, तो ये तो खुद ही 100 नंबर्स बन जाएंगे, राइट। So the largest number that is going to have 5 within this range is 13,490. Hence 5 will occur for the 5000th time in the number 13,495. I know this question number 6 is little complicated. अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स में लिख दीजिएगा. Whenever possible, I will view the solution. Let us now begin with question number 7. A calculator has only plus 10,000 and plus 100 buttons. Write an expression describing the number of button clicks to be made for the following numbers. अब हमारे पास एक कैलकुलेटर है जिसके पास सिर्फ 10,000 का और 100 का ही बटन है, और यही दो बटन्स यूज करके हमको ये फॉलोइंग नंबर्स को बनाना है. सो फॉर 20,800 अगर हम 10,000 का बटन 2 बार क्लिक कर दें और 100 का बटन 8 बार क्लिक करेंगे तो क्या बन जाएगा? 20,800 एंड ऑल्सो द टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स विल बी 2 plus 8 which is 10. For the next 92,100, so if I click the button of 10,000 9 times and the button of
121 times, I will get this number, right? So total number of clicks required are 30 clicks. Now 1,20,500. So 12 times I will press the button of 10,000 to make it 1,20,000, and then 5 times I am going to press the button of 100 to make it 500. So the total number of clicks will be 12 plus 5, which is equals to 17 clicks. So now you have 65,30,000. So if I only press the button of 10,000 653 times, directly हमारा figure बन जाएगा 65,30,000, right? 653 times हमारे clicks हो जाएंगे. Then you have 70,25,700. So we are going to press the button of 10,702 times. तो कितना बन जाएगा 70,20,000 बन जाएगा. उसके बाद we are going to press the button of 157 times. So that will make 5,700, and overall you will get the result as 70,25,700, and the total number of clicks will be 702 plus 57, which is 759 clicks. तो ये क्वेश्चन इजी था, हमने पहले भी इस क्वेश्चन को प्रीवियस एक्सरसाइज में बहुत बार किया है. Now let us move to the next question. Question number 8 is, how many lakhs make a billion? Billion कैसे लिखते हैं हम? We have a 1 and 9 zeros in front of a billion, right? तो अगर हमें ये निकालना है कि कितने lakhs billion बनाते हैं, और how do we write lakhs? Let's divide this billion with a lakh. So how many zeros? 5 zeros in front of a 1. तो ये हमारा 1 billion है, ये हमारा 1 lakh है. इसको सीधे सीधे अगर हम डिवाइड कर देंगे, so we will get, so 3 zeros and 3 zeros cancel, 2 zeros and 2 zeros cancel, and you get 1 with a 4 zeros. That means 10,000 times, right? So if you multiply 10,000 times with a lakh, you get a billion. That means 10,000 lakhs makes a billion. Next question is question number 9. You are given 2 set of number cards numbered from 1 to 9. Place a number card in each box below to get the largest possible sum, smallest possible difference of the two resulting numbers. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आपके पास नंबर कार्ड्स हैं. नंबर कार्ड्स हैं 1 to 9 के 2 सेट्स हैं. जैसे एक सेट ये मैं बना देती हूँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. और इन सब कार्ड्स के ऊपर इस तरीके से 1 to 9 डिजिट्स के नंबर्स लिखे हुए हैं. अब इन्हीं नंबर्स को यूज करके हमें एक लार्जेस्ट नंबर बनाना है. पहले तो अब लार्जेस्ट पॉसिबल सम को निकालने के लिए हम ऐसे वैल्यूज इन नो सेट्स में सेटअप करेंगे कि हमारा जो रिजल्टेंट सम आए वो मैक्सिमम आए. ठीक है. अभी 7 डिजिट नंबर को पहले हम कोशिश करेंगे कि सबसे बड़ा बनाते हैं. तो हमने दोनों कार्ड्स में से 9 उठाया, ये खत्म किया, ये खत्म किया, सो वी गेट 9 and 9. फिर ऐसे ही वी विल स्टार्ट विथ 8 ले लिए, फिर 7 ले लिए और फिर 6 ले लिए. तो ये सारे नंबर्स हमारे खत्म हो गए, 8 वाला, 7 वाला, 6 वाला. अब एक 6 बचा है तो इसको हम अरेंज कर देंगे. हमें तो सारे बड़े नंबर बनाने हैं ना. तो ये 5 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया, और जब आप इसका रिजल्टेंट सम निकालोगे तो आप देखोगे इट इज कमिंग एज 100,54320, राइट, विच कैन बी रेड एज, हम कॉमास लगा के देख लेते हैं. सो इट वुड बी 1,54,320. सिमिलरली जब मुझे स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस निकालना है तो आई वुड ट्राई टू मेक कि मैं सबसे छोटा नंबर लूं और उसमें से सबसे लार्जेस्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करूं. सो टू मेक द स्मॉलेस्ट नंबर आई यूज द स्मॉलेस्ट डिजिट्स. सो आई टेक 1, पहले दोनों 1s ले लिए, फिर 2s ले लिए, फिर 3s ले लिए और फिर एक 4. तो ये मेरा 7 डिजिट का छोटा नंबर बन गया. I have to make a biggest number out of the remaining digits, जिसको मैं subtract जब करूंगी इस छोटे नंबर से, so that I will be getting the smallest difference, right? अब मैं बड़ा नंबर बनाना है तो मैं बड़ी वैल्यूज यूज करूंगी. So I'll take 99, 88 and 7. And then when you will subtract, you will get 7, then 4, then again 4, then here you will get 2, 2, 0, 1, right? फिर से हम लोग कर देते हैं. सो द नंबर वुड बी 10,22,447.
Now let us move to the next question, which is question number 10. In this question, you are given some number cards like 4,000 है, 13,000 है, 300, 70,000, 1,50,000, 20 and 5. Using the cards, get as close as you can to the numbers below. Using any operations you want, each card can be used only once for making a particular number. For example, 1,10,000. So closest I could make is 4,000 into 20 plus 5 plus 13,000. That means इन्होंने क्या किया, 4,000 में 20 plus 5 which is 25 multiply कर दिया, 13,000 लिख दिया. So we are going to solve this according to the BODMAS rule. So 4,000 into 25 will give you 1 lakh. Right, and then you are going to add 13,000 to it. तो आपको जो nearest possible number बन गया है वो 1,13,000 बन गया. तो आपको ये नंबर कार्ड्स यूज करके ऐसे ही जो गिवन बिलो नंबर्स हैं उनके नियरेस्ट पॉसिबल नंबर्स बनाने हैं. सो सपोज फॉर 2 lakhs, अभी 2 lakhs में मेरे पास 1 लाख का नंबर कार्ड अवेलेबल है, 70,000 का भी है ना, और 4,000 का भी है. सो व्हेन आई एड 1,50,000 विद 70,000 एंड सब्ट्रैक्ट 5 टाइम्स ऑफ 4,000, तो 1,50,000 और 70,000 को मैं ऐड कर रही हूँ और उसमें से 4,000 into 5 which is going to give me 20,000 ये सब्ट्रैक्ट कर दे रही हूँ. तो मेरा तो एग्जैक्ट डिजिट ही बन गया, एग्जैक्ट नंबर बन गया, है ना. सो व्हेन आई एम डूइंग दिस, 4,000 into 5 will become 20,000 and I am getting an exact number of 2 lakhs. ठीक है, not nearest, I am getting an exact number. Now for 5 lakhs 80,000, तो 70,000 वाला कार्ड नंबर यूज किया और उसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया. So it will give me 3,50,000. Then I am going to add 1,50,000 to it. टोटल कितना हो जाएगा, ये 5 lakhs ऑलरेडी बन गया है. और फिर 4 lakhs into 20 किया तो it will give me 80,000. So again I am getting my exact number as 5,80,000. Next you have to make 12,45,000. जब आपने 70,000 into 20 किया तो आपको मिल गया 14 lakhs. नेक्स्ट आपने उसमें से 1,50,000 सब्ट्रैक्ट किया और फिर आपने उसमें से 4,000 भी सब्ट्रैक्ट किया एंड 300 टाइम्स ऑफ 5 भी कर देते हैं तो ये 1,500 हो गया. राइट, तो 3 lakhs में से 1,50,000 सब्ट्रैक्ट किया होगा तो क्या नंबर बना, 12,50,000. राइट, और उसमें से आपने 4,000 सब्ट्रैक्ट किया और फिर 1,500 भी सब्ट्रैक्ट किया. तो जब 4,000 सब्ट्रैक्ट किया सो आई विल गेट 12,46,000 and from this I am again subtracting 1,500 from it, so I will get 12,44,500. right, so isn't this number very close to 12,45,000? exact नहीं मिला है but बहुत close है. it is just 500 units different. right, and the last part is 20,90,800. तो हमने क्या किया, जो हमारा 13,000 वाला कार्ड था ना उसको 300 टाइम्स यूज कर लिया. सो दिस विल गिव मी 39 lakhs. उसके बाद 20 plus 5 25 और 25 टाइम्स ऑफ 70,000 विल गिव मी 17 lakhs 50,000. फिर द रिमेनिंग इज 1,50,000 and plus 4,000. So when you subtract 17,50,000 from 39 lakhs, you will get 21,50,000. उसमें से जब 1,50,000 वापस से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 20 lakhs मिल जाएगा. So when you add 4,000 to these 20 lakhs, you will get 20 lakhs 4,000. हम और क्लोज भी जा सकते हैं. अगर आप इसमें 70,000 और ऐड कर दोगे तो आप पहुंच जाओगे 20,74,000. सो देयर आर मल्टीपल वेज, आप जिसमें आगे पीछे हो सकते इसको कर सकते हो. द मोर क्लोजर यू विल गेट टू द नंबर, द मोर बेटर योर आंसर वुड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन 11. फाइंड आउट हाउ मेनी कॉइन्स शुड बी स्टैक्ड टू मैच द हाइट ऑफ द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. Assume each coin is 1 millimeter thick.
अब आपने पहले प्रीवियस एक्सरसाइज में जब हमने पढ़ा था तो देयर द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो अप्रॉक्सीमेट हाइट थी दैट वाज 180 meters and each coin is given in millimeters. So as compared to meters, millimeter is a smaller unit and we know the conversion rate is 1 meter is equals to 1000 millimeters. Now for 180 meters, can we convert that also into millimeters? So it would be easy for us to find the number of coins. तो 180 meters को millimeters में convert कर लिया, 1,80,000 millimeters आ जाएगा. Thickness of one coin is 1 millimeter. So now for getting the number of coins to be stacked, you will divide the height of the Statue of Unity in millimeters by the thickness of one coin in millimeters, and you get 1,80,000 coins will be required to match up the height of Statue of Unity. Next question is question number 12. Gray-headed albatrosses have a roughly 7 feet wide wingspan. They are known to migrate across several oceans. Albatrosses can cover about 900 to 1,000 kilometers in a day. One of the longest single trips recorded is about 12,000 kilometers. How many days would such a trip take to cross the Pacific Ocean approximately? तो यहाँ पे ग्रे हेडेड albatrosses के बारे में बात कर रहे हैं and they are well known for migrating from one place to another. अब एक लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रिप जो रिकॉर्ड की गई है दैट इज अबाउट 12,000 किलोमीटर्स. सो हाउ मेनी डेज वुड सच अ ट्रिप टेक टू क्रॉस द पैसिफिक ओशन? तो अगर आपको 12,000 किलोमीटर्स कवर करना है with the speed of either 900 kilometers per day or 1,000 kilometers per day, which is the range of gray-headed albatrosses. तो अगर हम मान लेते हैं कि these gray-headed albatrosses are traveling at a speed of like 900 kilometers per day, तो टाइम कितना लगेगा? 12,000 kilometers को 900 से डिवाइड करा, we will get 13.3 days. और अगर मानते हैं कि स्पीड उनका जो है वो 1000 kilometers per day है, तो टाइम will be 12,000 divided by 1000, which is 12 days. Since we are here going to give an approximate answer, it would be better to say that they take around 12 to 14 days for traveling across Pacific Ocean. Next question is question number 13. A bar-tailed godwit holds the record for the longest recorded non-stop flight. It traveled 13,560 kilometers from Alaska to Australia without stopping. Its journey started on 13th October 2022 and continued for about 11 days. Find out the approximate distance it covered every day. Find out the approximate distance it covered every hour. So in this question, they have given that a bar-tailed godwit travels a distance from Alaska to Australia, which is about 13,560 kilometers in 11 days. So how much distance is it going to travel each day and how much distance is it going to travel each hour? ठीक है. So if you want to find the distance that is covered every day, so we are going to divide the total distance with the number of days. So 13,560 over 11 will give you 1,232.72 kilometers. We can also say approximately 1,233 kilometers per day. And if you have to find the distance covered every hour, so you know that one day has 24 hours, right? और one day में ये कितना distance cover कर रहे थे? 1,233. So let us divide this distance with 24. So you get 51.375 kilometers. Thus, the godwit covers approximately 51 kilometers per hour. Coming to the last question of this exercise. Bald eagles are known to fly as high as 4,500 to 6,000 meters above the ground level. Mount Everest is about 8,850 meters high. Aeroplanes can fly as high as 10,000 to 12,800 meters. How many times bigger are these heights compared to Somu's building? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सोमूज की बिल्डिंग की हाइट चाहिए. तो याद है व्हेन वी वर डूइंग द फर्स्ट एक्सरसाइज, वहां पे हमने सोमू की बिल्डिंग की हाइट कैलकुलेट की थी विच वाज कंसिस्टिंग ऑफ 10 फ्लोर्स एंड द ग्राउंड फ्लोर्स, एंड देयर इट केम टू बी 44 meters, राइट.
Now we have to know that Baldigan can fly as high as 4,500 to 6,000 meters, right? तो अगर हम इसकी रेशियो निकालें एज कम्पेयर टू सोमूज बिल्डिंग, तो एक तो हम निकाल देते हैं 4,500 रेशियो 44 और दूसरा 6,000 रेशियो 44. तो जो लोअर एस्टिमेट आ गया वो 102.27 आ गया और जो हायर साइड पे एस्टिमेट आ गया वो 136.36 आ गया. Since we have to tell these answers approximately, so we can say that the Ball's eagle's flying height is about 100 to 140 times higher. Similarly, ratio हम निकाल देंगे to Somu's building for the Mount Everest. So Mount Everest की height is given as 8,850. इसको divide किया 44 से, you will get 201.36. So we can say that Mount Everest is 201 times higher approximately. And then we have to compare the aeroplane's height. So ratios compared to the Somu's building for aeroplanes. Let's divide 10,000 by 44 and then 12,800 by 44 for the upper estimate. So you get 227.27 and 290.90. Thus we can say an aeroplane's flying height is 230 to 290 times higher approximately. With this we come to the end of exercise 1.6. Also we come to an end of this chapter. I hope you have understood each and every concept. If still you find any doubts, you can please comment in the comment box. Also, if you are liking my videos, please share it with your friends, hit the like button, subscribe to my channel and also press the bell icon for getting more notifications. Thank you.